Please give a feedback if it is visible. Okay. So basically, we are going to talk about in this lecture about the doses of UVR. Dosage of UVR to calculate what we need is the minimal erythemal dose or the test dose is needed to be calculated before giving any treatment to any of the patients. Okay. So minimal erythemal dose is the actually main thing what we need to utilize when we need to calculate the UVR dosage. And it depends on different things. Exposure time is necessary. We should know how much exposure time is needed for the patient because skin sensitivity differs from patient to patient. So minimal erythemal dose is nothing. It is a slightly redness or erythema of the skin which is caused within 6 to 8 hours. Usually it develops. Some books document 1 to 6 hours, and usually it takes around 6 to 8 hours to develop. And it is visible up to 24 hours, and it will fade within this time. So it will fade within this time of 24 hours. Now, how you need to test to determine the dose? When you need to expose a patient to UVR for any of the conditions. So before going on to the treatment site, first you should choose an area which is free from any skin disease, and the patient area is at such a site that the patient is able to see that properly, and it is at a convenient location so that patient can inspect it at regular intervals. It should be free from any grease or dirt, so it should be cleaned with soap and water. You can select any of the areas. The most preferred area is the flexor surface of the forearm. You can also use abdomen or the medial aspect of arm or thigh. जो भी एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, leaving that area, rest of the forearm should not be exposed to the UVR. So जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उस एरिया पे एक्सपोजर देंगे आप UVR का, and rest of the forearm will not be exposed to the UVR. So you need to cover your patient for the other areas. Now करेंगे क्या, हम एक पेपर का, लिंट का या पेपर का या कार्डबोर्ड का एक स्ट्रिप लेंगे जिसमें हम 5 to 6 holes, you can cut actually 6 holes. Minimum it is said that 3 to 5, but it is good if you go for 6 holes, 5 to 6 holes. Okay. What you will do is you will cut those holes and you will have it a diameter of 2 centimeters square. So this is 2 centimeters square, basically in area, not the diameter. It should be 2 centimeters square in area. You will have it such 5 to 6 holes, and they should be 1 centimeter apart, and you will have a slide to cover these holes. Okay, next what we are going to do is what this cutting you have, you will fix it on the forearm or the other area, whatever you have selected for the patient. Now these cuttings, they are of different shape and sizes. The reason being, it is easy for the patient to identify the erythema easier. Okay. Now what we will do is we will start the lamp as per the instructions from the manufacturer and allow it to warm up. Then we will place the lamp perpendicular. Perpendicular means 90 degree to the area being tested. तो जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके 90 डिग्री पे आप उस लैंप को रखेंगे, और जो डिस्टेंस होगा दैट शुड बी 60 to 90 meters अवे फ्रॉम द साइट. सारी ओपनिंग्स अभी कवर्ड है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली ओपनिंग है उसको 30 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज करेंगे टू द यूवीआर रेडिएशंस. आफ्टर 30 सेकेंड्स हम सेकेंड साइड पे चले जाएंगे एंड वी विल एक्सपोज द सेकेंड साइड बाय रिमूविंग द स्लाइड फॉर 30 सेकेंड्स, और पहली स्लाइड अब अनकवर्ड रहेगी. तो ये जो स्लाइड्स हैं इसमें पहले आपने इसको 30 सेकेंड के लिए एक्सपोज किया, तब ये सारे कवर्ड थे. फिर आपने क्या किया, 30 सेकेंड के बाद आपने इसको एक्सपोज किया और इसको भी अनकवर्ड रहने दिया. टारगेट हम इसको करेंगे बट दिस रिमेन्स अनकवर्ड.
देन आफ्टर दैट जो भी होल्स हैं उनको आप 15 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज करेंगे. तो सपोज वी हैव 6 होल्स, तो वी विल एक्सपोज दीज फॉर 15 सेकेंड्स ईच. तो टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ? 130, 30, 60, 15, 15, 15 and 15, 60. So this will make 120 seconds. Example. Okay. तो अभी अगर हमने इसको अनकवर्ड रखा तो जो ओपनिंग फर्स्ट है इसको मैक्सिमम एक्सपोजर मिला और जो लास्ट ओपनिंग होगी इसको मिनिमम. तो इस ओपनिंग को तो 120 सेकेंड्स का एक्सपोजर मिला और इस ओपनिंग को मिला सिर्फ 15 सेकेंड्स का एक्सपोजर. फाइन. आफ्टर द एक्सपोजर टू ऑल द साइड्स आप क्या करेंगे? यू विल स्विच ऑफ द लैम्प और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हर 2 घंटे में वो अपने फोरआर्म को एटलीस्ट इन एवरी 2 आवर्स जो है वो अपनी ओपनिंग्स को जो है वो मॉनिटर करेगा और देखेगा कि किसमें रेडनेस सबसे पहले आई और किसमें और वो कितने टाइम में डिसअपियर हुई. फाइन. सो विच ऑफ द ओपनिंग्स. तो आपको अभी ये पता है कि किस ओपनिंग को आपने कितनी देर के लिए एक्सपोज किया था. ठीक है. तो पेशेंट को आप सिमिलर जैसा कार्ड आपने उसके हाथ पे स्टिक किया है वैसा ही एक कार्ड बना के भी दे सकते हैं और पेशेंट जो है उस पे भी मार्क कर सकता है कि दिस ओपनिंग हैड द फर्स्ट एक्सपोजर एंड दिस वाज द लास्ट टाइम लिख के लेके आ सकता है. तो जो मिनिमल टाइम में जिस ओपनिंग में एरिथमा आया होगा और डिसअपियर हुआ होगा विद इन 24 आवर्स, दैट इज योर एमईडी. तो आप उसका टाइम जिसमें मिनिमम टाइम में जिसमें आपका एरिथमा आया दैट यू हैव टू नोट. अब वहां से आपको मिल गया स्मॉलेस्ट डोज टू प्रोड्यूस. अब आपने कौन सा लैंप यूज किया था, कितने डिस्टेंस पे यूज किया था और वो एरिथमा कितने टाइम में आया. आपको तीनों चीजें मिल गई. यहां से आपको मिल जाएगा एमईडी. एसईडी यानी कि सब एरिथमल डोज वो डोज है जिसमें एरिथमा कॉज नहीं होगा. एमईडी इज जिस भी ओपनिंग में मिनिमम टाइम में जो एरिथमा कॉज हुआ जो डिसअपियर होगा विद इन 24 आवर्स, दैट इज द एमईडी. सो एमईडी का जो टाइम आपको मिल गया वहां से आप निकाल सकते हैं इवन डोज. इवन डोज इज बेसिकली द फर्स्ट एरिथमल डोज जहां पे एरिथमा जो है लास्ट करता है 1 to 3 days और स्केल्स कभी कभी स्किन पे अकर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स ऑन द स्किन. सो इवन डोज को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? दैट विल बी द आपका जो मिनिमल एरिथमल डोज का टाइम था उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से. तो दिस इज द टाइम व्हिच इज नीडेड फॉर द इवन डोज. सिमिलरली अगर आपको किसी को E2 डोज देना है दैट इज द सेकेंड डिग्री एरिथमल डोज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एमईडी का जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. E2 डोज जब हम देते हैं तो देयर इज अ स्लाइट इडीमा, peeling and pigmentation. You can see the pigmentation of the skin as well. एंड देन अगर आपको किसी को E3 डोज देना है तो उसमें आप MED के टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से. इसमें सिवियर एरिथमा होगा. इवन बर्निंग इज एसोसिएटेड विद ब्लिस्टरिंग, पीलिंग एंड इडीमा. Fine. So these are the dosage how you can calculate the MED and then how you can decide on that which dose should be given.